یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزیزان گرامی مرتبت 1447 ہجری کے عشرہ محرم 8 محرم الحرام آپ جلوس کی مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور انتہائی تاخیر ہو چکی ہے، اسی وجہ سے میں کوشش کروں گا تیزی کے ساتھ، اب 1 گھنٹے کی مجلس تو نہیں ہے جو بانیان کا حکم ہے، کوشش کروں گا کہ چند دقیقوں کے اندر میں کچھ فضائل آپ کے حوالے کر سکوں۔ ذرا سے گزارش کروں گا کہ اگر صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا قریب آ جائیں، ممبر کی بلا فصل کے ماننے والے فاصلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ذرا سا قریب ہو جائیں، مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ اللہم صلی علی تھوڑی سی رکھیے گا نا مجلس تک مسائل کے مدعی کی اور امام عزیزان گرامی تھوڑا سا اگر آپ لوگ بھی آپ زحمت فرمائیں، ذرا سا قریب ہو جائیں، بے شک گرمی کا موسم ہے لیکن آل محمد کے ذکر کے آگے کوئی شے معنی نہیں رکھتی۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا آل محمد کی ذات پہ۔ سلامت رہیں عزیزان گرامی، بے شک وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن یہی جو حادثات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، یہی اس چیز کی واضح دلیل بنتے ہیں کہ آل محمد کا ذکر کسی وقت کا محتاج نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوشش کیجئے گا میرے ساتھ ساتھ بولتے جائیں، کچھ دعائیں بھی ہیں جناب شوذب عباس صاحب کے لیے اور ہمارے سرفراز بھائی کے خانوادے کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی عزادار یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تمام کی دعاؤں کو جناب سیدہ قبول فرمائیں۔ عزیزان گرامی اور 2 دن بچے ہیں، جناب سیدہ سے یہ بھی درخواست ہے کہ شہزادی جتنے بھی عزادار کائنات میں جہاں جہاں ذکر حسین میں مشغول ہیں، بی بی حفاظت کے ساتھ ان کو یہ عاشورہ منانے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی ضمانت میں رکھیں، اور آج کے دن تو ہر عزادار کو ہم حضرت عباس کی ضمانت میں دے دیتے ہیں۔ یہ سیکیورٹی والے احباب ان کی وجہ سے ظاہری بات مجلس بھی جلدی ختم کرنا پڑے گی، لیکن یہ ان کا احسان ہے اور آل محمد کے ہاں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا قانون ہے، ان کو ان کی جزا دی جائے گی۔ لیکن یہ بات سب کو یاد رکھنی چاہیے اور ہم علی الاعلان یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری سیکیورٹی حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری سیکیورٹی اس کے ہاتھ میں ہے کہ جس کے ہاتھ نہ بھی ہو تو آل محمد کو اس پہ یقین ہوتا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تمہید کروں اور کسی طرح سے تقریر کو کسی طرف لے کے جائیں، بس 2-4 گوشے فضائل کے آپ کے حوالے کر دوں تاکہ ذکر علی پوری آب و تاب سے روشن ہو جائے، اور گرمی کا موسم ہے اور آپ کے سامنے سورج بھی ہے، اور اللہ کرے کہ چھپ جائے تاکہ عزاداروں پہ سایہ ہو جائے۔ یہ تو روحانی آنکھیں ہی دیکھ سکتی ہیں کہ عزاداروں کے سر پہ جناب زہرا کی چادر کا سایہ ہے، لیکن ظاہری طور پہ بادلوں کا سایہ ہونا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی اللہ قسم کھا رہا ہے اسی سورج کی اور کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، سورج کی قسم اور سورج کے چڑھنے کی قسم، آب و تاب کے ساتھ روشن ہو جانے کی قسم۔ بار الہ سورج کا آب و تاب کے ساتھ روشن ہو جانا ہمارے لیے زحمت بن جاتا ہے، اتنی دھوپ ہو جاتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے، پسینے آتے ہیں۔ یہ تو اب آپ احباب بہتر جانتے ہیں کہ سورج کی آب و تاب کے اندر چلنا کتنا دشوار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھا رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ، صرف وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، سورج کی قسم اور اس کے روشن ہو جانے کی قسم، اس کے آب و تاب کے ساتھ روشن ہونے کی قسم، اور پھر دوسری قسم اللہ نے کھائی کہا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا، اور چاند کے سورج کے پیچھے پیچھے آنے کی قسم۔ آپ آباد رہیں عزیزان گرامی۔ دیکھیں اچھا یہ چاند جو ہے نا، یہ اللہ نے عربی میں چاند کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ احباب اہل علم کا مجمع تشریف فرما ہے، کوشش کیجئے گا ساتھ ساتھ بولتے جائیے گا۔ یہ جیسے شیر کے لیے کئی الفاظ ہیں، شیر کو صرف عربی میں اسد نہیں کہتے، اسد اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن شیر کو غضنفر بھی کہتے ہیں، شیر کو عباس بھی کہتے ہیں، شیر کو حیدر بھی کہتے ہیں، شیر کو کسورہ بھی کہتے ہیں۔ خدا کی قسم اس پہ تو خوش ہو جائیں، مسلمانوں کو بتایا کرے کہ ہم ذکر علی کے ساتھ ذکر رسول بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ نے علی کو حیدر کہا ہے تو محمد مصطفیٰ کو قرآن میں کسور کہا ہے، اور کسور اس شیر کو کہتے ہیں جس سے ڈر کے جانور بھاگ جاتے ہیں۔
जबकि रसूल तो किसी जंग में लड़े ही नहीं हैं। अल्लाह फिर भी कह रहा है कि हबीब तुम हमारे कसबर हो, यानी कि वो शेर हो जिसको देखकर कुफार का लश्कर भाग जाए, जिसको देख के कुफार का लश्कर भाग जाए। तो जैसे अरबी में शेर के कई नाम हैं, बल्कि आज हजरत अब्बास का दिन है, जुमला और आपके हवाले कर दूं। अरबी में हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने दुश्मन पे हमला करे, चीर फाड़ कर दे। असद उस शेर को कहते हैं जिसको देख दुश्मन खौफ खाए। गजनफर उस शेर को कहते हैं कि जो अपनी कचार से निकले और अपने शिकार की तरफ नजर जमा के देखना शुरू कर दे। बात पहुंच रही है गिरामी, वसूल कीजिएगा। उलमाए लुगत ने लिखा है कि अरबी में अब्बास उस शेर को कहते हैं कि जो हमला ना भी करे लेकिन उसका होना दुश्मन पे हैबत तारी कर दे। सलामत रहे। अरबी में अब्बास उस शेर को कहते हैं, उलमा लोगत ने लिखा है कि वो शेर के जिसका होना पूरे जंगल पे हैबत तारी रखे, यानी कि वो हमला करे या ना करे, बस उसका। अच्छा आप कहेंगे भाई अब शायद आपने आसानी से सुन लिया, एक जुमला और आपके हवाले कर दूं। उमरे साद को खत लिखा था अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने, और खत क्या लिखा था, कहा बताओ कि हुसैन के पास कितने खैमे हैं, कितना लश्कर है। एक खत लिखा, दूसरा खत लिखा, खत पे खत लिखता जा रहा है और उमरे साथ टाल मटोल कर रहा है। अब इब्ने ज़ियाद ने दोबारा खत लिखा, कहने लगा उमरे साथ तू बताता क्यों नहीं है कि हुसैन का लश्कर कितना है। जुमला सुनिएगा, आपके दिल में मोहब्बत अब्बास हुई तो सरचार हो जाइएगा। उमरे साद ने जवाब खत जो लिखा है ना, लिखने वाला है सोने के हरूफ से, और जवाब खत का जवाब ये लिखा उमरे साद ने, कहने लगा इब्ने ज़ियाद तू वहां महल से बैठ के कह रहा है कि लश्कर गिन के बताओ। अरे जहां करबला के मैदान में आ तो तुझे पता चले लश्कर गिना कैसे जाता है। इस लश्कर के सामने अब्बास जैसा आलमदार पहरा दे रहा हो, उस लश्कर की तरफ आंखें उठा के देखना मुहाल हो जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह अरबी में चांद के कई, हर चांद की जो खसरत है, हर चांद की सिफत है, उसका अलग नाम है, हर खासियत का अलग नाम है। पहली के चांद को हिलाल कहते हैं। बात पहुंच रही है? आप लोग बड़े खामोश बैठे हैं, थके हुए हैं, लेकिन बोला करें, इस जिक्र में बोलने से मुकद्दर चमक जाते हैं। तो साथ साथ बोलते रहा करें अज़ीज़ान गिरामी। बस 2-3 दकीके और हैं और मैं बिल्कुल मसाइब से मुत्तसिल हो जाऊंगा। अरबी में चांद के कई नाम हैं, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहली का चांद, तीसरी का चांद, वो चांद जिसे देख के आप ईद करते हैं, वो चांद सूरज के पीछे पीछे है तो उसकी कसम। अल्लाह ने कहा 14वीं के चांद को कहते हैं कमर, यानी मुकम्मल चांद को, पूरे मुकम्मल चांद को। अल्लाह ने कहा वह शम्स व ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, सूरज की कसम और उसकी रोशनी की कसम, और उसके पीछे पीछे चलने वाले मुकम्मल चांद की कसम। खुदा की कसम अब आपके हवाले कर रहा हूं, जैसे चाहे समाज कीजिएगा। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा से रावी ने पूछा, तफसीर बुरहान, तफसीर मुस्तक़लैन, दोनों किताबों में आपको हवाला मिल जाएगा। कहा मौला ये अल्लाह किस चांद की कसम खा रहा है, किस सूरज की कसम खा रहा है। इमाम ने कहा तुम क्या समझते हो, इस सूरज की कसम खा रहा है, इस चांद की कसम खा रहा है। खुदा की कसम खुश हो जाइएगा, आप अली के चाहने वाले हैं। इमाम ने फरमाया रसूल खुदा एक दिन घर से निकले, सर पे अमामे को सजाया हुआ था। रसूल घर से निकले, जिब्रील आए और कहा ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह कह रहा है वह शम्स व ज़ुहाहा, ए हबीब तुम्हारी कसम, तुम्हारे चेहरे से निकलते हुए नूर की कसम। कहते हैं अभी इतना ही रसूल चले थे कि पीछे पीछे घर से अली निकले, जिब्रील दोबारा आए, कदमों पे हाथों को रखा। रसूल ने कहा जिब्रील क्या हुआ, कहा अल्लाह कह रहा है वल कमर इज़ा तलाहा। अब उस समय ने पलट के देखा, पीछे अली तशरीफ, पीछे पीछे अली तशरीफ ला रहे थे। देखिए मैं पिछले 8 दिन से 2-2, 3-3 मजलिसें पढ़ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आप 5-5, 6-6 मजलिसें पढ़ के बैठे हुए हैं। कोशिश कीजिए, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ बोलते जाइएगा। अज़ीज़ान गिरामी, बोलने से इंसान छोटा नहीं होता,
बल्कि बोलने से इंसान की कीमत बढ़ती है। अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी अल्लाहु मकामहु जनाब सईदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए कहा करते थे, इतना बड़ा सर हिलाने से बेहतर है इंसान छोटी सी ज़ुबान हिला दे। तो इसलिए बोलते रहा करें आले मोहम्मद के जिक्र में। बस एक जुमला फजाइल का आपके हवाले आज की हद तक कि अली को किस कुरान ने क्या कहा, आफ्ताबे रिसालत रसूल खुदा, और महताब इमामत कौन, अली। और इसे कुरान ने क्या कहा, कमर, यानी कि कुरान की नजर में पहला इमामत का कमर है अली, दूसरा इमामत का कमर है कौन, हसन। अब वक्त होता तो मैं तफसील से आपके आगे बयान करता, लेकिन ये 12 के 12 जो इमाम हैं ये सब के सब कमर इमामत हैं, महताब इमामत हैं, यानी इमामत के मुकम्मल चांद हैं। बस अब जुमला आखिरी आपके हवाले करने जा रहा हूं। जहां पे बनी हाशिम के घर में 12 मुकम्मल चांद हो, 12 कमर हो, और अगर 12 कमर मिलके किसी को कमरे बनी हाशिम कह के पुकारे, जिसे 12 कमरों की मौजूदगी में, 12 चांदों की महताबों की मौजूदगी में कमरे बनी हाशिम कहा जाए, उसे अब्बास कहते हैं। और बस इज़ान गिरामी, क्योंकि शहादत का वक्त है, शहादत के मसाइल पढ़ने हैं और वक्त इंतहाई करीब है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा तेजी से शहादत के मसाइल पढ़ूं और जो हुक्म है बानियान का तकमील करने की कोशिश करूंगा। इसी चांद का आसरा था अली की बेटियों को। कोशिश कीजिएगा आज़ादारों, अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़ के रोइएगा। फजाइल में आप ना बोलें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मसाइब की बारी आए तो फिर बुलंद आवाज़ से चीख के गिरिया कीजिए, क्योंकि फजाइल पे बोलना ना बोलना अपने मुकद्दर की बात है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब आले मोहम्मद की मुसीबत में गिरिया करते हो ना, तो बकैये से एक बीबी अपने पहलू से हाथ उठा के आ जाती है। वो बीबी जो मुसलमानों के दरबार से खाली लौटी थी, बस इतना याद रखना, अगर वो रुमाल फैला के तुम्हारे पास आ जाए तो हुसैन की गरीब माँ खाली हाथ ना लौटे। अज़ादारों, आज 8 मुहर्रम हो गई है, आप लोग थके हुए होंगे, लेकिन इतने थके हुए नहीं होंगे जितने आले मोहम्मद थके हुए थे। आप थके हुए हैं, उठ के सबील कर लेंगे, पानी पी लेंगे, मगर कल से हुसैन के खैमों में पानी बंद है। 3 दिन तक हुसैन के खैमों में अज़ादारों पानी बंद था और प्यास बढ़ती जा रही थी, शिद्दत की गर्मी थी। ऐसे में हुसैन लाशों पे लाशें उठा के ला रहे थे, और लाशों पे लाशें उठा के लाते थे। बार बार अब्बास हुसैन के करीब आके खड़े हो जाते थे और कहते थे, आका अब मुझे लड़ने की इजाजत दे दीजिए। तो हुसैन कहते थे, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के सालार हो, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अज़ादारों, जैसे ही हुसैन कहते थे ना तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, अब्बास एक मर्तबा दाएं देखते थे, फिर बाएं देखते थे और सर को झुका के कहते थे, मौला अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था, अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं सालार था। अज़ादारों, लेकिन हुसैन अब्बास को जाने की इजाजत नहीं देते थे। ऐसे में एक मर्तबा अब्बास ने देखा कि खैमों के बाहर एक छोटी सी बच्ची बार बार आती है और बार बार अंदर चली जाती है। आपके गिरिए के मैं कुर्बान, ये जो रोती हुई आंखें नजर आ रही है, जनाब ज़हरा इन पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अज़ादारों, अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़िएगा। अब्बास करीब आए और कहा, सकीना क्या मुश्किल है? कहने लगी, चचा मैं तो प्यास बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरा 6 महीने का भाई अली असगर, चचा अगर 2 बूंद पानी की सबील करवा दे। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, सकीना जाओ अपना मशीदा लेकर आओ। अब्बास को जैसे वसीला मिल गया और एक मर्तबा जनाब सकीना को अब्बास ने बुलाया। सकीना मशीदा लेकर आई और एक मर्तबा अब्बास जमीन पे झुके, इतना झुके कि अब्बास के हाथ सकीना के कदमों पे आ गए। हुसैन की 4 साल की बेटी ने बशकीजे को अब्बास की गर्दन में पहनाया। अब्बास ने भतीजे को अपनी गोद में उठाया और हुसैन के करीब आए। अब जो हुसैन ने अब्बास को आते हुए देखा, लामुहल्ला अपनी कुर्सी से उठे और उठ के अब्बास से कुछ नहीं कहा, बस सकीना को पुकार के कहा, सकीना अभी तो चचा की सिफारिश लेकर आ गई, कल जब शुरू तबाशे मारेगा चचा को पुकारोगी, सकीना चचा रहेंगे। अजरो कबल अल्लाह। अज़ादारों, के मर्तबा जनाब सकीना अब्बास की गोद से उतरी। हुसैन से अब्बास ने इजाजत दी। हुसैन ने कहा, अब्बास देखो एक बात का ख्याल रखना कि तुम पानी लेने जा रहे हो, तुम लड़ने नहीं जा रहे। अज़ादारों, के मर्तबा अब्बास ने एक हाथ में अलम उठाया और गले में बशीरे को डाला, एक हाथ में तलवार को
उठाया, नेज़े को थामा, अब्बास खैमों से निकले। लेकिन अज़ादारों सुनोगे, करबला के शोहदा में सिर्फ 2 शहीद ऐसे हैं कि जिनकी दफा जब एक अब्बास और एक हुसैन के जब घर से निकले हैं तो आले मोहम्मद की सैदानिया सरों से चादरें उतार के और सर पे मातम करती हुई सहरा में आ गई और कहती थी, हाय अब्बास, तुम्हारे बगैर हमारे मोहब्बत क्या करेंगे। अज़ादार अपनी आवाज़ों को आज़ाद रखना। एक मर्तबा अब्बास मैदान की जानिब गए और गज़ब की तलवार चलाई। बस 2 जुमले और समाप्त कीजिएगा। जब अब्बास पहुंचे हैं ना नहर के किनारे, अज़ादारों नहर के किनारे पहुंचे, अब्बास ने मशकीज़े को नहर से भरा। मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए, 2 लहज़े सांस ले लेना, फिर गिरिया करना, दुल्हना की बरामदगी होगी, अलम बरामद होगा। अज़ादारों एक मर्तबा जनाबे अब्बास ने नहर से मशकीज़े को भरा। 3 दिन का प्यासा था बहादुर, लेकिन शेर ने पानी न पिया। लेकिन अब्बास ने एक मर्तबा रहबार से कहा, ये जो जुलझना आएगा ना ज़ियारत करना, ये जुलझना को हुसैन अब्बास ने कहा कि तू प्यासा है, तू भी पानी पी ले। मगर जुलझना ने ज़बाने बेज़बानी में सर हिला के बता दिया, कहा जब तक आप प्यासे हैं मैं पानी नहीं पीऊंगा। हुसैन के अब्बास के रहबार ने भी पानी नहीं पिया। अब्बास पानी लेके चले। अब जब खैमों की तरफ आते थे, एक मर्तबा उमर साद ने कहा कि किसी भी तरह पानी हुसैन के खैमे में ना पहुंचे, ये प्यासे हैं तो ऐसे लड़ते हैं, अगर पानी पहुंचा तो ना जाने कैसे लड़ेंगे। अज़ादारों एक मर्तबा हमला हुआ और ऐसा शदीद हमला हुआ, बस मैं कह दूंगा जैसे चाहे सुनिएगा। अज़ादारों एक मर्तबा अब्बास का एक बाजू कलम हुआ, उसके बाद अब्बास का दूसरा बाजू कलम हुआ। अब्बास फिर भी खैमों की जानिब बढ़ रहे थे कि एक मर्तबा एक तीर अब्बास के मशीदे में लगा। अब्बास वीर पे समझ न सके। अज़ादारों अब्बास ने खुद को झुकाया, एक मर्तबा एक बुर्श अब्बास के सर में लगा। अब्बास वीर से गिरे। आपसे सवाल करूंगा, जब कोई घोड़े से गिरता है तो अपने हाथों से सहारा लेता है। अज़ादारों खुद सोचना, जिसका बाजू कट जाए वो वीर से गिरे, किसका सहारा लेगा। अज़ादारों उधर अब्बास वीर से गिरे, इधर हुसैन खैमे की दहलीज पे गिरे। और एक मर्तबा कभी गिरते थे कभी उठते थे, ना जाने हुसैन कैसे फुरात के किनारे पहुंचे। लेकिन रास्ते में मक्तल ने लिखा कि हुसैन ने झुक के 2 मर्तबा अब्बास के 2 बाजू उठाए और सीने से लगा के कहते जाते थे, अब्बास तेरे बाजू कट गए, अब ज़ैनब की चादर कौन बचाएगा, अब कोई फ़ोन का पर्दा अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों 2 जुमले और समाप्त करना। एक मर्तबा हजरत अब्बास का अलम लेके हुसैन खैमों की जानिब चले। हजरत अब्बास दीन से गिर चुके थे। जब इमाम हुसैन अब्बास के लाशे के करीब पहुंचे हैं ना, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि उलमा और ज़ाकिरीन मिंबर से पढ़ते हैं कि हजरत अब्बास ने कहा, चचा अब मेरे भाई आका हुसैन, मेरे लाशे को खैमों में ना लेके जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है। अज़ादारों ऐसा नहीं है, मैं बख्तर की रिवायत जिम्मेदारी से आपके हवाले करूंगा। हुसैन हर लाशा उठा के लाए थे, लेकिन अब्बास का वाहिद लाशा है जिसे जब भी हुसैन ने उठाना चाहा तो बदन के जिस हिस्से पे हुसैन ने हाथ रखा वहां का गोश्त हुसैन के हाथ में आ गया। अब्बास का लाशा मजरूह हो चुका था, अब्बास का लाशा पामाल हो चुका था। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास के अलम को उठाया, अब्बास के बाजुओं को समेटा। अब जो आता हुआ अलम देखा, सकीना ने दरे खैमा पे बच्चों को जमा करना शुरू किया और कहा, बच्चों मैं ना कहती थी मेरे चचा पानी लेकर आएंगे, आओ अपने अपने कूदे लेके आ जाओ, मेरे चचा पानी लेके आ रहे हैं। अज़ादारों अलम खैमों के करीब आया, आता हुआ अलम देखिएगा, अगर अलम है तो करीब ले आइएगा। अज़ादारों अलम करीब आया, जैसे ही अलम करीब आया, एक मर्तबा जनाबे सकीना ने तमाम बच्चों को जमा किया हुआ था, लेकिन जब सकीना ने देखा कि अलम आ गया और चचा ना आए, कहा, बाबा बाबा मेरे चचा कहाँ रह गए। हुसैन ने कहा, सकीना मैंने कहता था अब अब्बास ना आएंगे। सकीना ने कूदा फेंका, कहा, बच्चों अब मेरी पानी की ज़बान है तो खत्म। अज़ादारों अलम बरामद हो गया। बस 2 जुमले और सुनना। एक मर्तबा हुसैन अलम को लेकर खैमों में आए।
ایک جملہ حساس جملہ ہے، بس آخری جملہ سماعت کرنا، ازادار کوشش کرنا چیخ مار کے رونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی اکبر کا تابوت اٹھتا ہے، قاسم کا تابوت اٹھتا ہے، حسین کا تابوت اٹھتا ہے، عباس کا علم اٹھتا ہے، تابوت کیوں نہیں اٹھتا؟ ذرا سوال کرنا اور گھر جا کے سوچنا۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ حسین عباس کا لاشا نہیں لائے تھے، تو علم کیوں اٹھتا ہے؟ عزاداروں آپ کے گریے پہ قربان، لیکن عزاداروں جملہ سن لینا، ایک مرتبہ حسین عباس کا علم خیموں کے اندر لائے، اور خیموں کے اندر لائے تو زینب نے کہا اے میرے آبر بھائی حسین، اب ہر کسی کا لاشا لائے، میرے بھائی عباس کا لاشا کیوں نہ لے کر آئے؟ ایک مرتبہ حسین نے علم کو خیموں کے درمیان زمین پہ رکھا، پھیرے کو اوپر ڈالا، کہا زینب یہ عباس کا لاشا، اسی پہ بات کر لو۔